Hello everyone. So we were doing our chapter 4 of science, that is life cycle of plants and animals. So in the first part of video we had discussed about life cycle of a plant. In that we have discussed that how a plant grows from a seed, or you can say what are the various stages in the life cycle of a plant when it grows from a seed. Okay, so today we will discuss about the animals or insects. So under the insects, first of all we will discuss about life cycle of a butterfly. That what are the various stages, you can say, in the life cycle of a butterfly, or you can say what are the various stages a butterfly has gone through in its life cycle. So first of all we will commonly talk about insects. We are not talking about only butterfly. So look at the first line, insects reproduce by laying eggs. कहते जो insects होते हैं वो कैसे reproduce करते हैं बेटा? by laying eggs. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो हैं बेटा, दे आर नॉट लेइंग एग्स, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. ओके, दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. वो डायरेक्टली किसको बर्थ देते हैं? ह्यूमन बींग्स, ठीक है, टू डायरेक्टली यंग वंस. सो ऐसे एनिमल्स ऑल्सो, जैसे एनिमल्स काउ, बफलो, they never reproduce by laying eggs, they also giving birth to young ones. But जो insects होते हैं बेटा, insects reproduce by laying eggs. The eggs hatch to produce larvae which pass through different stages after they become a fully grown adult insect. कहते हैं उसके बाद जो eggs है, eggs में से एक larva निकलता है, ठीक है. eggs hatch to produce larvae, और यू कैन से लार्वा, ठीक है. एग्स में से क्या निकलता है? एक लार्वा. उसके बाद वो जो लार्वा है बेटा, विच पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, उसके बाद वो लार्वा आगे डिफरेंट स्टेजेस में से पास होता है, एंड आफ्टर दैट इट बिकम अ फुली ग्रोन अडल्ट इंसेक्ट. और यू कैन से कि यू कैन से दैट बिफोर बिकम अ फुली ग्रोन अडल्ट इंसेक्ट, की एक अडल्ट इंसेक्ट बनने से पहले जो लार्वा है, इट पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. सो लेट अस लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट, दैट इज बटरफ्लाई. नाउ वी विल टॉक अबाउट बटरफ्लाई, दैट व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन द what are the various stages that are present in the life cycle of a butterfly. So there are four stages, and each stage is different from each other, they look different at each stage. You can see here each stage is different from each other beta. At every step you will see a different stage. So now we will read about these stages. फर्स्ट इज़ टाइनी एग्स आर लेड बाय फीमेल बटरफ्लाई ऑन अ लीफ. सबसे पहले जो एक फीमेल बटरफ्लाई होती है बेटा, वो छोटे छोटे टाइनी एग्स आर लेड बाय फीमेल बटरफ्लाई ऑन अ लीफ. ओके, सो फीमेल बटरफ्लाई, यू कैन सी हेयर, वी विल डू along with the picture, you can see here. So first of all you can see here eggs are written na. So these eggs are laid down by the female butterfly on a leaf. So this is the first stage कि जो फीमेल बटरफ्लाई है सबसे पहले वो एग्स ले डाउन करती है लीफ के ऊपर. नाउ सेकेंड इज इन द फर्स्ट स्टेज ओनली, आफ्टर 5 days लेटर, 5 दिनों के बाद बेटा, टाइनी वर्म लाइक क्रिएचर्स हैच फ्रॉम द एग्स. दीज आर कॉल्ड लार्वा. ठीक है. दिस इज द सेकेंड स्टेज that after 5 days when the female butterfly lays down eggs on a leaf, then after 5 days a worm like creature, मतलब एक कीड़े की तरह, ठीक है, क्रिएचर जो है वो एग्स में से बाहर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लार्वा. दैट इज कॉल्ड larva. Okay, this is the second stage. Now the larva of a butterfly is called caterpillar. कहते जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर. That is called caterpillar. Okay,
इट इज़ द प्राइमरी ईटिंग एंड ग्रोइंग स्टेज ऑफ इंसेक्ट। प्राइमरी मतलब ये सबसे इनिशियल स्टेज है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रोइंग स्टेज। मतलब जो एट दिस स्टेज इट विल ग्रोज एंड it will pass through one more different stage, and then after that a fully grown insect, or you can say butterfly, will be formed. So this is the second stage, that after 5 days from the eggs a worm like a creature hatches, that is larva, and this larva of a butterfly is called caterpillar. Now come on the third stage. Now the name of the third stage is pupa. The name of the third stage is pupa. Now a fully grown caterpillar enters the third stage called the pupa. Now after some days when it only feeds, it cannot move here and there, it only stays on a leaf, and after some days it enters into a third stage, that is called pupa. दिस इज़ द रेस्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। बेटा ये इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा स्टेज को रेस्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। वाई दिस इज़ रेस्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज? बिकॉज एट दिस स्टेज जो लार्वा होता है बेटा, इट रेस्ट फॉर सम टाइम, फॉर सम डेज, ठीक है, ये रेस्ट करता है इनसाइड आ सॉलिड स्ट्रक्चर। ये एक अपने आप को ये एक स्ट्रक्चर में, सॉलिड स्ट्रक्चर में रैप कर लेता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्राइजेलिस। क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? क्राइजेलिस, जिसके अंदर ये अपने आप को हाइड कर लेता है फॉर सम डेज, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज। नाउ वाई दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज? बिकॉज आफ्टर सम डेज it grows and after that it will emerges from this solid like structure, that is chrysalis, as a adult butterfly. So that's why this is known as transformation stage, because it transforms। जो लार्वा था बेटा, ठीक है, वो प्यूपा स्टेज में आ गया, एंड देन प्यूपा स्टेज किस में कन्वर्ट होगी, किस में ट्रांसफॉर्म होगी, अडल्ट बटरफ्लाई में। सो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज रेस्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। नाउ वी विल रीड दिस थर्ड पॉइंट। अ फुली कैटरपिलर एंटर्स द थर्ड स्टेज कॉल्ड द प्यूपा। दिस इज़ द रेस्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज इन विच द कैटरपिलर हाइड्स इनसाइड ए क्राइजेलिस। कहता है जिसमें जो ये कैटरपिलर है, और यू कैन से लार्वा है, अपने आप को हाइड कर लेता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना, एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये अपने आप को हाइड करता है, दैट इज़ नोन एज क्राइजेलिस, दैट इज़ नोन एज क्राइजेलिस, ठीक है, उसको हम क्राइजेलिस बोलते हैं। एंड द क्राइजेलिस कैन बी फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है, इट we can see that it is hanging from the surface of the leaf, it is in hanging उसमें होता है बेटा, पोजीशन में होता है। ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्यूपा डिवेल्प्स इनटू एन अडल्ट। आफ्टर दिस, ठीक है, जब ये लार्वा जो है अपने आप को हाइड कर लेता है इनटू क्राइजेलिस, देन दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, एंड आफ्टर सम डेज, ड्यूरिंग दिस स्टेज एंड आफ्टर सम डेज द प्यूपा डिवेल्प्स इनटू एन अडल्ट। उसके बाद ये अंदर ही, इसके अंदर ही ग्रो करता रहता है, इसके अंदर ही ग्रो करता है क्राइजेलिस के, एंड आफ्टर सम डेज इट एमर्जेज एज अ अडल्ट बटरफ्लाई। और उसके बाद ये क्राइजेलिस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके अंदर से क्या एमर्ज होता है, अडल्ट बटरफ्लाई। नाउ कम ऑन द फोर्थ स्टेज। फ्रॉम द प्यूपा, कहते हैं प्यूपा में से क्या अमर्ज होता है, क्या अमर्जिस का मीनिंग होता है बेटा, बाहर निकल के आना। फ्रॉम द प्यूपा अमर्जिज द बटरफ्लाई, अब क्या आ गई उसमें से बटरफ्लाई। ओके, द अडल्ट बटरफ्लाई लिव्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। इनका जो बेटा जो इनका टाइम होता है दैट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये दे कैन लिव ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। लाइक ह्यूमन बींग्स उनकी जो लाइफ है दे कैन सर्वाइव अप टू 70 ईयर्स। सम ह्यूमन बींग्स दे कैन सर्वाइव अप टू 80 ईयर्स, 90 ईयर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 ईयर्स के होके भी मरते हैं, ठीक है। बट बटरफ्लाइज देयर लाइफ इज़ नॉट सो लॉन्ग, इतनी लंबी नहीं होती, दे ओनली सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, छोटे से कुछ टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करते हैं। एंड बिफोर डाइंग, मरने से पहले जो फीमेल बटरफ्लाई है अगेन इट लेज डाउन एग्स,
ठीक है। फिर से ये एग्स ले डाउन कर जाती है एंड द लाइफ साइकिल बिगिनस ऑल ओवर अगेन, और फिर से ये सेम लाइफ साइकिल जो है वो रिपीट होता है। ऐसे बटरफ्लाई बनते जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये एग्स ले डाउन करती है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। इन दिस लाइफ साइकिल वी हैव स्टडीड दैट हाउ butterfly undergoes through various stages, that how butterfly undergoes through various stages in its life cycle. So first stage is it lays down eggs on a leaf. Second is after 5 days a worm like creature hatches from the eggs, that is larva, and larva of butterfly is caterpillar. And after few days the larva undergoes the third stage, that is pupa. In this stage the larva hides itself in a solid structure that is called chrysalis, and where it grows and it rests for some period of time. After that, after growing hair, an adult butterfly emerges from the pupa. So this is the fourth stage. So in this way this is the life cycle of a butterfly, or you can say these are the various stages in the life cycle of a butterfly. So this was our today's video beta. In next video we will discuss about life cycle of a silk moth, okay. So please read this life cycle of a butterfly and life cycle of a plant. Your today's homework is this only, that you have to read this page number 46, 47. Okay beta, now we will meet in next video. Till then, bye bye everyone.